only discuss a single particular name, but we will also discuss many important names. So, starting from Elizabethan drama, what were two main features of Elizabethan drama? What was the specialty of Elizabethan drama? Whenever we talk about Elizabethan drama, we mention this name, Renaissance. We have mentioned this term 100,000 times. That what is Renaissance? So Renaissance and Elizabethan drama, they have some connections. So in today's session, we will understand Elizabethan drama in detail. We will try to understand that why Elizabethan drama is considered the best drama. Elizabethan drama. But before talking about Elizabethan drama, Renaissance, Renaissance was a movement that started in 14th century and started somewhere in Italy. And then it traveled from Italy towards Germany and France in 15th century. And then after that, in 16th century, it came in England. That was Renaissance. So Renaissance was not just a movement born in the land of England. Before talking about drama specifically, it is pertinent to mention the ancient dramas, the previous preface, the previous logs of drama. What was happening before Elizabethan age in drama? So in ancient drama, obviously, whenever we will talk about ancient drama, we will mention the name medievalism. So in medievalism, what was happening in medievalism? What was there in medievalism? Anyone would like to talk about medieval drama? What was the major theme of medieval dramatists? What they were contributing? Anyone from the participants? Navidur Rahman, please go on. What do you feel about medievalism, the drama of medieval age? Anyone can answer the question. Okay. Mic is not working. Okay, that's fine. In ancient drama, in medievalism, we feel that they were dealing with two themes. The religion was there. So we can say medievalism was religion oriented. Yes, yes, very good, Adnan. Religion oriented plays were there. But in Renaissance, religion oriented means obviously Christianity. But in Renaissance, the things are changing gradually. And when we're talking about Christianity, that doesn't mean the Protestantism. But what does that mean? Christianity means Orthodox, Catholic Church, Roman Catholic. So in medievalism, we have drama, but drama was religion oriented, and Christianity was there, and especially Roman Catholic Church was there. So Protestants were not there. Now we are going to understand two dimensions, two pictures. So what were those two pictures? Drama in medieval age, but before that, let us understand this very pentagon. I am drawing, several corners in front of you. This diagram is there. Let me use, okay. This one is more clear than previous one.
drama in medievalism was having two edges. For example, if we are saying this one was the edge number one, medievalism के अंदर इसकी दो ही कॉर्नर थे, नंबर वन यहाँ पे और उसके बाद हमारे पास जो है वो नंबर टू यहाँ पे। अब ये क्या क्या थे? मिडिवलिज्म के अंदर ड्रामा ने दो ही काम किए, दो ही चीजें लोगों को बताई, मेडिकल थे, मिस्ट्री प्लेस थे। बताया ये कहते थे कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द गॉड, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द चर्च, आपको बाइबल को समझने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ पे? आपको समझना पड़ेगा लोगों को। आप अगर बाइबल को समझना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये सारे मामलात समझ में आ सके, देन व्हाट यू विल हैव टू डू इज दैट कि आपको ये तमाम चीजें जो है वो वाया फादर, वाया प्रीस्ट जो है वो समझनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा प्रोटेस्टेंटिज्म में नहीं था। मैंने अभी आपके सामने जो दो कॉर्नर्स ड्रॉ किए हैं, ये मिडिवलिज्म को इंडिकेट कर रहा है। ये एक ऐसी पिक्चर है जिसमें आपके पास 5 कॉर्नर हैं इन टोटल जो है। दो पे बात हो गई, दो ये कौन थे हमारे पास जो हैं, ये मिडिवलिज्म के, जिसमें ये बताया जाता था कि आप मेडिकल और मिस्ट्री प्लेस हैं, और अगर आपने रिलीजन को अंडरस्टैंड करना है, रुखसाना लेट मी स्टॉप योर वीडियो and let me mute. So, if you want to understand, तो आप जो हैं वो आपको ये काम करने पड़ेंगे। बट ये सारी स्टोरी क्या इतनी सिंपल है, इतनी सादा सी है? हमारे पास जो है प्रोटेस्टेंटिज्म जब आई, प्रोटेस्टेंटिज्म ने ये कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन पैटर्न्स को फॉलो करने की, यहाँ से यहाँ तक। अब ये पैटर्न्स कौन से थे कि यहाँ पे आप जो है वो इंसान खुद खड़ा हुआ है। पहली हमारे पास जो डायमेंशंस हैं, ये आपको पहली जो पिक्चर यहाँ पे, अब यहाँ पे इंसान खुद खड़ा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे चर्च है, यानी कि जहाँ पे फादर है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे गॉड है। तो अगर आप सारी की सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये समझ में आ सके कि गॉड तक पहुँचने का रास्ता क्या है, तो आपको करना क्या होगा? आपको करना ये है कि आपको इन तमाम डायमेंशंस को फॉलो करना होगा। ये कैथोलिक चर्च कहता है। यहाँ पे आप खड़े हैं, फादर के रास्ते आप गॉड तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास प्रोटेस्टेंटिज्म आती है, तो प्रोटेस्टेंटिज्म आपको सिर्फ 2 चीज़ें देती है। प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं कि यहाँ पे आप खुद हैं और यहाँ पे आपके गॉड है। सो देयर इज नो मिडिल वे। ये जो मिडिल वाला जो रास्ता यहाँ पे है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने अभी ये जो फ्लिकर करता हुआ आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है वो ये नहीं है। सो ये हमारे पास जो सारी डायग्राम है, ये हमें समझाती है। कैथोलिक चर्च में आम आदमी जो है, इफ ही वांट्स कि वो खुदा तक समझ सके, वो गॉड तक समझ सके, तो उसको क्या क्या करना होता था कि वो यहाँ से जो है वो यहाँ पे चर्च तक जरूर एक्सेस हासिल करे। अगर वो चर्च तक जाएगा तो फिर ही वो जो है वो गॉड तक पहुंचेगा। लेकिन जब हमारे पास जो स्टोरी है वो यहाँ से कैथोलिसिज्म से हट के प्रोटेस्टेंटिज्म पे आती है, तो अब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये एक सिंपल सी डायग्राम थी जो कि जिससे हमने ये समझने की कोशिश की द थिंग्स वर मूविंग इन विच डायरेक्शन इन दैट सेंस। तो अभी हमें चूंकि थोड़ी सी इसकी समझ आ गई है, तो हम आगे चलते हैं। सो कॉमन पीपल in that age, in that century, they were having no way towards God. गॉड्स के पास जाने का हम लोगों के पास एक ही रास्ता होता था कि चर्च तक चले जाएं। So if they are in church, obviously they will have to meet with the priest there. और जब आपको priest पे वहाँ पे मिलना पड़ता है, जब आप priest के पास हैं obviously, तो priest किस तरह से, आपने द चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो है वो फ्रायर का कैरेक्टर तो पढ़ ही रखा है कि कैसे जो है वो गुनाहों को बख्शने के परवाने जारी करता है। सिमिलरली हमारे पास इस सारे के सारे कल्चर पे ये जो 3D इन्होंने कल्चर बनाया हुआ था रोमन कैथोलिक चर्च ने, इनको ब्रेक करने के लिए कुछ नेम है।
ये जो 3D पिक्चर है ये ब्रेक होती है by Martin Luther. We have already discussed this name, Martin Luther. You know, he was from Germany when we were discussing history in detail. Second name was John Calvin. John Calvin. And third name, John Calvin. Obviously, he was a very prominent Protestant. So both these people, both these legions, they prefer Bible and God directly. They taught people there is no need of any middleman. If you want to get access to the God, all right, go directly to the Bible and then the God is there. So this change, this very change, in very simple word, this change of the picture from 3 dimension to 2 dimension is known as Protestantism. Protestantism. प्रोटेस्टेंट नाम से ही आपको पता चलता है ना, प्रोटेस्ट एक एहतजाज था। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है कैथोलिसिज्म के खिलाफ एक एहतजाज था। जब आपको दबाया जाता है तो आप प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्टेंट्स। और इन्हीं को जो है वो हम प्यूरिटनिज्म भी कहते हैं या प्यूरिटन भी कहते हैं। सो कैसे प्रोटेस्टेंट एंड प्यूरिटन जो, सो फ्रॉम प्रोटेस्ट दे वर। एंड कैथोलिक the picture is 3D picture, and in those 3 dimensions man, priest and God is there. In Protestantism the picture is 2D picture, mean just the Bible and the God is there. So Protestants say that there is no need of any middleman. We shouldn't, you know, find out, we shouldn't go for it. हमें किसी ऐसी चीज को फॉलो नहीं करना, हमें किसी ऐसी चीज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना कि जिसमें हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो ना समझ में आ सके हमें। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अदनान साहब, प्लीज elucidate this 3D and 2D dimension. What is the difference between the Catholic Church and the Protestant Church? What you have understood from today's session? Adnan, please unmute yourself. Do not use the chat box if it is visible for you and there is no noise in your background. सर इस 3D डायमेंशन में ये हुआ करता था सर के मैन वो पहले फादर को यूज करता था सर गॉड को पहुंचने के लिए। तो ये कैथोलिक चर्च का ये था सर। तो ये प्रोटेस्टेंटिज्म जो है ना सर ये चेंज हो गया था सर 2 डायमेंशनल में सर। उसमें ये कहा कि मैन को फादर की जरूरत नहीं है गॉड तक पहुंचने के लिए। मैन खुद जो है ना गॉड तक पहुंच सकता है अगर वो बाइबल को खुद पढ़े और रीड करे सर। That's very good. That's very good. Be active, please. I am just going to take you guys and your, answers in today's session. और याद रखिएगा कल के सेशन में अगर मैं बताना भूल भी जाऊं तो कल के सेशन में इल्मी के कैप्सूल की बुक आपके साथ जो है वो ऑलरेडी शेयर हुई है। दैट इज अवेलेबल इन योर ग्रुप। उसके पहले 30 पेजेस जो हैं वो उनका टेस्ट हुआ करेगा अभी से ऑनवर्ड। हमारे सेशंस के जो लास्ट 20 मिनट्स होंगे पहले आपका सेशन होगा और उसके बाद जो है वो उसका रैंडमली द क्वेश्चंस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन और आप अपने आप को अपने आंसर्स को चैट बॉक्स के अंदर जो है या अपने आप को अनम्यूट करके दे सकेंगे। सो फर्स्ट 30 पेजेस, ओके 30 पेजेस जो हैं ये अपने करना है। इसमें हम खैर बाद में भी बात करेंगे, अभी हम सेशन में आगे बात करते हैं। आपके जो टेस्ट सेशंस हैं उनको हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा ओरिएंटेड कर सकें और टेस्ट फोकस जो है वो डिस्कशन ज़्यादा हो। सो मैन डोमिनेंस, जब प्रोटेस्टेंटिज्म आ गया तो आपने एक चीज और देखी कि मैन वाज द सेंटर, मैन केम इन द सेंटर। मैन केम इन द सेंटर से क्या मुराद है? पहले जो है जब बाइबल में समझना होता था तो हमें प्रीस्ट को लेना पड़ता था। सो प्रीस्ट जो है वो समझा जाता था कि प्रीस्ट इज द वॉइस ऑफ गॉड। अब वॉइस ऑफ गॉड से क्या मतलब है कि जो बातें हैं वो फादर से कहें। आज भी क्रिश्चियनिटी के अंदर यू गाइस नो इट बेटर इन वेरी बेटर टर्म्स। क्रिश्चियनिटी के अंदर इवन इट इज हैपनिंग नाउअडेज दैट यू confess your all crimes in front of your father in Christianity. So the Protestantism was there in Elizabethan age. What I want you to understand is Protestantism was in the center of Elizabethan age.
सेंटर पे हो क्यों ना? इनको एलिजाबेथन के फादर ने तो इंट्रोड्यूस करवाया था। सो मैविश खान हमें आंसर देंगे कि एलिजाबेथन, क्वीन एलिजाबेथन के फादर का नेम क्या था, और अगर मुमकिन हो सके तो उनका टेन्योर भी बताएं, हमने कल ही डिस्कस किया। मैविश खान कैन अनम्यूट हरसेल्फ। कोई भी आंसर दे सकता है इसका, इफ यू गाइस रिमेंबर in the chat box. Yes, Mudassir, please go on. Mudassir, you can answer this question. Unmute yourself. Assalamualaikum sir. मेरी आवाज आ रही है? Yes, Mudassir, please go on. Yes, you are audible. Henry 8 1509 to 1547 ये वाले थे। Very good, very good, very good, very good. Henry 8 1509 to 1509 to 1547. good, very good. Mashallah. You please mute yourself. Okay. So we were discussing all these things yesterday, so इनको याद रखा करें। So अब हमने देखा एलिजाबेथन एज के अंदर मैन जो है वो सेंटर में आ गया। अच्छा जी, मैन सेंटर में आने से क्या मतलब हुआ? मैन सेंटर से आने से मतलब एक और थ्योरी जो है वो आ गई। वो थ्योरी क्या थी? ह्यूमैनिज्म। इस पे भी हम बात कर रहे थे। ह्यूमैनिज्म से मतलब आप इस थ्योरी के अंदर ही देखिए, द वेरी वर्ड, ये जो मैन है दैट इज इन द सेंटर, ये मैन ही जो है वो इसमें आपको सेंटर में नजर आ रहा है। सो मींस ह्यूमनिज्म के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो मैन इन द सेंटर था। मैन जो है वो सारे की सारी डिस्कशन का सेंटर में था। अब ये जो जब मैन इसके सेंटर में आ गया तो अब हमारे पास मैन ने जो है वो एक ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि जिसमें अब वो सारी चीजें गॉड से रिलेटेड नहीं थे। द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी कि अब हमारे पास जो है वो मैन इज इन द सेंटर। और सेंटर में आने से क्या होता है हमारे पास, हमने डिस्कस किया कि अब जो सारी की सारी थ्योरीज हैं उनका रुख जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया। अब इस चीज को समझते हैं और इस चीज को आगे चल के देखते हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म के अंदर हमने जो दो तब्दीलियां देखी, एक तो इंसान जो है उसका रुख तब्दील हुआ, the man came in the center, and the second important thing was that all the writers, we always mention your writers, they're not writing in vacuum, they are not alien. So whenever they're writing, they are writing about your life, they are writing, the literature is actually the depiction of your life, literature is life. So writers, इससे पहले जब हमारे पास मिडिवलिज्म में मोरालिटी प्लेस थे, उसमें हमें कहीं आदमी नजर नहीं आता, लेकिन अब रेनेसांस के अंदर हमें आदमी नजर आना शुरू हो जाएगा। क्यों नजर आना शुरू हो जाएगा? इंटरव्यू के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज ह्यूमनिज्म। सो ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी थी, एक थ्योरी थी जो मार्टिन लूथर किंग ने और जॉन कैल्विन ने दी थी, जिसमें मैन जो है वो सेंटर पे है। दैट मैन वाज, मैन इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। अब जो है जो एलिजाबेथन ड्रामा है, इस ड्रामा को डिटेल से डिस्कस करने से पहले सेंचुरी को समझ लीजिए। इसमें सेक्युलरिज्म जो है वो सेक्युलर मुआशरा जो है वो वजूद में आ रहा था। अब हमारे पास जो सोसाइटी है वो ऐसी सोसाइटी है जो रैशनैलिटी पे बात करती है। अब हमारे पास सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो प्रोग्रेस पे बात करती है। वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे कि प्रोग्रेस एक ऐसी प्रोग्रेस कि इंग्लैंड जो है एक छोटा सा कंट्री, बहुत छोटा सा कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो हमारे पास है, लेकिन वो अपने से बड़े, बहुत बड़े कंट्रीज को जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उनके ऊपर भी कब्जा कर लेता है। The thing is that they focus more on secularism, rationality, and progress. So whenever we are saying Renaissance doesn't mean simply the three terms. That is, we often mention that is the revival, okay, that is a rebirth, that is a rejuvenation. Okay, yes, it is the literal meaning of Renaissance, but Renaissance in literal sense means, that is very important, the revival of what? Revival of knowledge. And knowledge, कौन सा knowledge? ऐसा नॉलेज जो कि ग्रीको रोमन ने दिया था। ठीक है सर?
जो कि हमें ग्रीक से मिला या जो हमें रोमन से मिला, ऐसा नॉलेज होता है। अच्छा जी, ये क्या बात हुई कि कौन सा ऐसा नॉलेज जो है वो हमें ग्रीक और रोमन ने आके दे दिया, क्या इससे पहले नॉलेज नहीं था? द थिंग इज दैट दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा ग्रीक और रोमन ने जिन्होंने ड्रामा पे सबसे ज्यादा असर किया। फेसिनो, FICINO, फेसिनो। The dates are not important, just the names is important, name is important. And secondly, obviously Platonic theology, that there was obviously a theology, not a name of a person, Platonic। अब ये किन बलाओं के नाम है? फेसिनो कौन था? प्लेटोनिक थियोलॉजी क्या है? दैट मींस फेसिनो मींस प्लेटोनिक थियोलॉजी। फेसिनो तो एक राइटर था, इस पर भी बात करते हैं, बट प्लेटोनिक थियोलॉजी मीन रिवाइवल ऑफ प्लेटो। तो ये हो रहा था जी इसके अंदर। रिवाइवल ऑफ प्लेटो से मतलब क्या प्लेटो को जिंदा किया था? नो, प्लेटो के नॉलेज का अहया था। प्लेटो के नॉलेज को जो है वो वंस अगेन ना सिर्फ उठाया गया था, बल्कि प्लेटो के इल्म को जो है उसको मॉडल बनाया गया था। और जब किसी चीज को मॉडल बनाया जाए तो उसके मुताबिक काम आता है। प्लेटो का मॉडल बनने के बाद आपके पास कौन सा काम आया था? थॉमस मूर का। थॉमस मूर ने क्या लिखा था? यूटोपिया लिखा था। कब लिखा था? लिखा था 1516 में। सो ये हमारे पास इस तरह से रेनेसांस में जो है वो चीजें चलती हैं। और फेसिनो कौन था? फेसिनो वाज अ राइटर। फेसिनो वाज फ्रॉम इटली, ही वाज एन इटालियन राइटर। अब यहाँ से जब थॉमस मूर इन चीजों से इंस्पायर होते हैं तो हमारे पास जो है बुक्स किस तरह से आती हैं? द एजुकेशन ऑफ प्रिंसेस बाय एरिस्टमस ने ये किताब लिखी थी। इससे पहले हमारे पास एजुकेशन की बात तक नहीं होती। सो दैट इज रेनेसांस एंड दैट इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। ये ड्रामा को समझने से पहले सारी चीजें समझ रहे हैं। एलिज़ाबेथन ड्रामा जो है एक मूवमेंट के ऊपर बेस्ड था। अच्छा, ये मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है और ये किस बला का नाम है? यूरोपियन मूवमेंट के नाम से इसे हम जानेंगे। और ये मूवमेंट क्या है? एक तहरीक है। यूरोपियन मूवमेंट क्या है? एक ऐसी मूवमेंट जिसमें लोग जो हैं प्लेटो से, एरिस्टमस से, पेट्रियट से मुतासिर हैं। प्लेटो, एरिस्टमस, ERASMUS, एरिस्टमस एंड पेट्रियट से मुतासिर हैं। एक ऐसी मूवमेंट जिसका ओरिजिन होता है इटली के अंदर। यूरोपियन मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट जिसमें पेट्रियट ने, एरिस्टमस ने और प्लेटो ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किए, इनकी राइटिंग्स हैं। एलिज़ाबेथन ड्रामा जो है आपके पास ये मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ किस तरह से था? ये ज्यादा मेच्योर ड्रामा था। मेच्योर, इट इज अ मेच्योर प्रोडक्ट ऑफ रेनेसांस। This time your renaissance is not going to give you just the entertainment. Let me paste all these things in the chat box and let us discuss all these things. Okay, just give me a moment. Okay, yes. So एलिज़ाबेथन ड्रामा एक मेच्योर प्रोडक्ट है। जब कोई फल पक जाता है ना जिस तरह से, वैसे ये फल पक चुका हुआ है। किस मूवमेंट का? यूरोपियन मूवमेंट का। यूरोपियन मूवमेंट कौन सी मूवमेंट थी? जो इटली से शुरू हुई थी, जिसके जो है प्लेटो, एरिस्टमस, पेट्रियट बानियों में से, फेसिनो जो है वो इसके बानियों में से, कोपरनिकस इसके बानियों में से। ठीक है जी। सो remember one thing I always used to mention, most of the movements they started out of England, including Renaissance. It started in Italy, originated out of England, but they got fruits in England. और इस मूवमेंट का सबसे करता धरता जो हमें नाम नजर आता है वो विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर, जिसके मुतालिक हम ये कहते होते हैं ना अक्सर नाम ही काफी है, तो वो विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ देम, के जिसका हम समझते हैं कि हमारे लिए नाम ही काफी है। तो काफी इसने कंट्रीब्यूशन जो है वो की। सो विलियम शेक्सपियर की कंट्रीब्यूशन जो है इन पर बात कर लेते हैं कि इन्होंने आगे कौन से ऐसे खास कारनामे सर अंजाम दिए जो बाकी जो है वो नहीं कर सके। ओके जी, विलियम शेक्सपियर जो है इसने
कल के सेशन में हमने देखा कि काफी कंट्रीब्यूशंस की, कॉमेडीज भी लिखी, ट्रेजेडीज भी लिखी, हिस्ट्रीज भी लिखी, इवन हमने एक एक चीज को डिटेल से देखा। आज हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमेडी की। कल भी बता रहा था, कॉमेडी इज बेसिकली इन वेरी सिंपल डेफिनेशन, जब भी कभी इंटरव्यू में यू आर गिवन ए चांस टू आंसर एनी क्वेश्चन, तो सिंपल रहिए। सिंपल से मुराद ये है कि अपने लिए डिफिकल्टी लीव्स ना कीजिए, अपने लिए क्वेश्चन वैसे ना पैदा कीजिए कि कॉमेडी की आप जो है वो वाली तारीफ सुनाना शुरू कर दें जो आपने किसी किताब से कोई 2-3 घंटे लगा के उसको याद किया है और वो आपको क्लियर ही नहीं है। सिंपल वर्ड्स में बताइए, कॉमेडी इज द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। कोई पूछ लेता है जी कॉमेडी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ कैसे है, बताइए कॉमेडी के अंदर वही सब कुछ होता है जो हमारी जिंदगी में होता है, दैट इज द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ट्रेजेडी के अंदर, ट्रेजेडी इज रिप्रेजेंटिंग द पेन एंड सॉरोज ऑफ लाइफ। क्या आज के दौर में ट्रेजेडीज नहीं होती? क्या सोफोक्लिस ने ट्रेजेडीज लिखी थी? क्या इडिपस ही जो है वो उसकी ट्रेजेडी है? क्या हैमलेट भी ट्रेजेडी है? सो बी सिंपल, बी प्रिसाइज, बिकॉज यू नो ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। सो निशाते सानिया से पहले, रेनेसांस से पहले, जिंदगी जो थी, जो लाइफ थी, वो जैसे थी वैसे नहीं दिखाई जाती थी। एज इट इज वाली जो पिक्चर थी वो क्लियर नहीं होती थी लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोगों को मिस्ट्री प्ले दिखा रहे हैं, जब आप लोगों को मेडिकल प्ले दिखा रहे हैं, वो कौन से लोगों की जिंदगी है? वो आम लोगों की जिंदगी तो नहीं हो सकती, वो मेरी और आपकी जिंदगी तो नहीं हो सकती, वो तो कुछ सेंट्स की जिंदगी हो सकती है, वो उन लोगों की जिंदगी हो सकती है जो हमसे बेहतर थे, तो वो हमारे लिए नहीं थे। एक वक्त आता है जब आप लोगों को फार फ्लैट चीजें दिखाते रहते हैं तो वो उकता जाते हैं। सो सिमिलरली ये अब जो है वो डिफरेंस था इस टेन्योर में और पहले टेन्योर में। इन दिस टाइम कॉमेडी जो है एलिजाबेथन एज की, वो चीजें दिखा रही है जो वहां पे मौजूद है। कॉमेडी इज व्हाट इज एज इट इज। एज इट इज से क्या मुराद है? द रियल लाइफ अब जो है वो नजर आना शुरू हो गई है। इससे पहले इंग्लैंड के अंदर रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। रियल लाइफ से क्या मुराद है? अब लोगों के अंदर अगर किसी के अंदर वर्च्यू है तो वो हमारे पास मौजूद है, अगर किसी के अंदर कोई वर्स क्वालिटी मौजूद है तो वो हमारे पास नजर आ रही है, अगर कोई अच्छा है तो वो अच्छा भी नजर आ रहा है, अगर कोई बुरा है तो वो हमें बुरा नजर आ रहा है। सो कॉमेडी इज द लाइफ इज बीइंग डिपिक्टेड एज इट इज। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले जो है वो हमारे पास चीजें कुछ और डायरेक्शन में थी। इससे पहले जो डायरेक्शन थी वो इस तरह से थी कि हमारे पास जो किंग्स एंड क्वींस थे उनकी लाइफ हमें नजर आती थी। सो एलिजाबेथन एज ने, जब हम रेनेसांस की बात करते हैं तो हुजूर वाला याद रखिएगा, एलिजाबेथन एज ने, इन्होंने तो लाइफ को सेलिब्रेट किया। लाइफ को सेलिब्रेट करने से क्या मुराद है? इन्होंने दिखा दिया कि जिंदगी ये है, हमने जो देखा वही बयान कर दिया। किंग्स एंड प्रिंसेस, अब शेक्सपियर के देखें आप, किंग्स एंड प्रिंसेस, हम कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं क्योंकि जब भी आप कहीं पे भी बात करेंगे तो विदाउट प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स यू कैन नॉट मूव ऑन। सो वी आर ऑब्वियसली गिविंग यू सम आर्ग्यूमेंट्स। किंग्स एंड प्रिंसेस अब हमें विलियम शेक्सपियर की राइटिंग्स में नजर आते हैं। तमाम स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लोग हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब कॉमेडी जो इंग्लैंड की है उसमें हमें वो लोग नजर आते हैं जो कि आम लोग हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे लोग। लेकिन विलियम शेक्सपियर की तो हमने बात कर ली। विलियम शेक्सपियर से पहले भी कोई था जो कि लंदन के अंदर कॉमेडीज में जो है वो अपना रोल अदा कर रहा था। यस, एक टर्म है जो हमारा कल के सेशन है, वो है हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे, क्या थे, अभी इन पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द यूनिवर्सिटी विट्स टुमारो। सिंपली सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो और समझदार हो उसे यूनिवर्सिटी विट कहा जाता है। सो इस टेन्योर में जो दो बंदे कॉमेडीज पे काम कर रहे थे, एक का नाम लिली था, इनकी भी ईयर्स इसलिए नहीं लिखूंगा बिकॉज वी आर गोइंग टू मेंशन ऑल द थिंग्स टुमारो। और सेकंड जो है वो हमारे पास जॉर्ज पील थे। ये दो लोग थे जो कि कॉमेडीज के अंदर अपना काम कर रहे थे। इसके बाद जो है जॉर्ज पील एंड जॉन लिली। और तीसरा जो है, आप एक और नाम भी मेंशन कर ही लीजिए, और वो रॉबर्ट ग्रीन का नाम है। So these people were there who were contributing in comedies. But the most fantastic thing is that when William Shakespeare came on the limelight, he outshined others.
No, people, they were not interested in the comedies written by Lily Peel and Robert Greene. They were interested in the comedies written by William Shakespeare. अब विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज में कौन सा ऐसा जादू और तावीज था कि उसने आकर दूसरों को आउटशाइन कर दिया? मिसाल के तौर पे हमने कल टेमिंग ऑफ शेड्यू की डेट्स भी डिस्कस की थी, इसी की बात करते हैं। तो टेमिंग ऑफ द शेड्यू जो है, इसके अंदर ऐसा इसने क्या लिख दिया कि यूनिवर्सिटी विट्स जो है उन लोगों से भी ये आगे निकल गया। यूनिवर्सिटी विट्स बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। यूनिवर्सिटी विट्स वो लोग थे जिनके पास डिग्रियां थी, जिनके पास उनके एकेडमिक लाइफ थे। विलियम शेक्सपियर ने तो अपनी बमुश्किल हाई स्कूलिंग मुकम्मल की थी। हाई स्कूल तक इसके पास तालीम थी, और वो भी कहाँ से? स्टैटफोर्ड एवन से। अपने देहात से, जहाँ पे ये पैदा हुआ और जहाँ पे ये मरा बाद में, वहीं पे इसने वहां से हासिल की थी। द टेमिंग ऑफ द श्रू जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी, हम इसमें देखते हैं कि इसमें वो बताता है शेक्सपियर की वजह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। Like in 2020, like the chairman of the PPSC, his name was Imtiaz Ahmed Khan. He asked this question from our aspirant who was preparing his interview classes, was taking his interview classes with us. Like, how you can say William Shakespeare outshined the university wits? What was the magic? Why William Shakespeare's pen is known as the magical wand? What was the very simple thing about William Shakespeare, yet very impressive? So you are requested to remember all these main points. The first point is, जब कभी आपने कहावत या कोटेशन सुनी होगी, इंग्लिश में सुन रखी होगी, उसे हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर नहीं सुन रखी तो कोई बात नहीं, इसका तर्जुमा कुछ यूं होता है, नुकसान की शक्ल में फायदा हो जाना। विलियम शेक्सपियर जब कुछ नहीं कर सका अपनी यूनिवर्सिटी तालीम, तो उसने हाई स्कूल तक मुकम्मल की। अब वो एक एक्टर था, अपने गांव से छोड़ के आया। इवन उसने बेन जॉनसन का प्ले जो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर्स के अंदर उसने अपना एक रोल भी अदा किया था, उसने एक किरदार भी अदा किया था। जी, क्वेश्चन ये है मुदस्सिर कि विलियम शेक्सपियर ने यूनिवर्सिटी विट्स को कैसे आउटशाइन किया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलियम शेक्सपियर्स राइटिंग्स एंड द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो यूनिवर्सिटी से हाईली क्वालिफाइड लोग थे, लेकिन उन्होंने विलियम शेक्सपियर एक आम सा अनपढ़ सा सादा सा बंदा जो है उसे कैसे आउटशाइन कर दिया? सो उसका मैं आंसर दे रहा हूँ कि टेमिंग ऑफ द श्रू में हम ये भी देखते हैं, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए कि इसके पास किस तरह से थी, एक सिंपल सा एक्टर था। एक्टर आता है, लंदन में आता है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन से। बेन जॉनसन के प्ले के अंदर भी जो है वो परफॉर्म करता है, और परफॉर्मेंस देने के बाद जो है वो कोशिश करता है कि अपने करियर को कुछ बेहतर बना सके। विलियम शेक्सपियर ने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस किया था, बतौर एक्टर इसने जो है वो काम किया। कौन सा कैरेक्टर है उसमें क्रिटिक्स जो है वो मल्टीपल व्यूज रखते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो इसमें जो उनके नौकर का, जो उनके सर्वेंट का कैरेक्टर है, जो हम एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को डिस्कस करेंगे तो वी विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। सो इसने, जब आप किसी की ह्यूमन यूनिवर्सैलिटी को हिट करते हैं, जब आप जो है वो जनरल टेस्ट को हिट करते हैं, जब आप जो है वो नेचर को समझते हैं, तब आप लोगों को आउटशाइन कर देते हैं। विलियम शेक्सपियर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि इसने नेचर को समझा। नेचर को समझने से क्या मुराद है? हेट कॉमन है, पाकिस्तान में भी लोग नफरत करते हैं, कनाडा में भी करते हैं, हर जगह करते हैं। लव कॉमन है, ठीक है जी, सॉरोज कॉमन है, हैप्पीनेस जो है वो कॉमन है, ये जज्बे कॉमन है। उसने इन चीजों पे हिट किया। सेकंड थिंग वाज दैट विलियम शेक्सपियर की जो खासियत थी, जब वो ये लिखा करता था तो इसकी एक ही चीज ओरिएंटेड थी, वो ये था ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। तीसरा, यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो बाउंड थे। वो बाउंड किस चीजों पे थे? वो यूनिटीज को, उन्होंने ग्रीको रोमन की दी हुई यूनिटीज को फॉलो करना था। विलियम शेक्सपियर वाज नॉट क्वालिफाइड इनफ, तो इसने यूनिवर्सिटी कोई भी 3 यूनिटीज को फॉलो नहीं किया, सिवाय अपने एक प्ले में, जिसको जो हम द टेम्पेस्ट के नाम से जानते हैं। और मार्केट में मौजूद जो किताबें हैं उनके अंदर गलत जवाब जो है वो 12th नाइट लिखा होता है।
तो ये 3 यूनिटीज को फॉलो करता है, द यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस एंड टाइम, जो कि गलत है। तो आप इसको विजुअल देख सकते हैं। सो विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी अ टेमिंग ऑफ श्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर वो सारी चीजें बताता है। अब द टेमिंग ऑफ श्रू की हमने मिसाल जब ली है, तो इसके अंदर वो जो सब्जेक्ट लेता है वो क्या है, नेचुरल, वो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है जो सबके साथ कॉमन है। खवातीन को समझना, आप आज भी देखें पाकिस्तानी सोसाइटी की मिसाल ले लें, तो हमारे जो सोसाइटी के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, स्टिल वी फील यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वुमेन। इट इज रियलिटी, अगर हम इससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन जो लोग कहते हैं यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द इमोशंस। सो हमारे एक दोस्त लॉयर हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि उनके पास डाइवोर्स इशू इसलिए ज्यादा आते हैं कि ये मुझे समझ ही नहीं सका आज तक। तो 40-40 सालों के बाद भी इश्यूज आ रहे होते हैं कि तुम मुझे समझ ही नहीं सके आज तक। खैर, मूविंग ऑन, इस सबको मैं पेस्ट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। अगर किसी का कोई चीज मिस हो गई है तो वो यहाँ से इसको दोबारा से नोट कर सकता है। दूसरी जो कॉमेडी है, अ मिडसमर्स नाइट। लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स। ये क्या लिखा हुआ है आगे दोबारा से। ओके जी, दूसरी हमारे पास जो कॉमेडी है, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। इन दिस कॉमेडी विलियम शेक्सपियर ने जो आर्ट इस्तेमाल की थी वो थी एक ड्रीम। एक कॉमेडी के अंदर एक ड्रीम का एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल किया। ये एलिज़ाबेथन ड्रामा की खासियत थी जो दूसरी मैं बताना चाह रहा हूँ। इस ड्रीम के अंदर क्या है, ख्वाब के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और विलियम शेक्सपियर ने इस ड्रीम के अंदर क्या किया, सुपर नेचुरलिज्म को जो है वो उसने इन्वॉल्व कर लिया। सुपर नेचुरलिज्म से क्या मुराद है, हम देखते हैं कुछ करैक्टर्स हैं हमारे पास, पक है और बॉटम है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। हमारा सेशन चंद सेकंड्स के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आप इसी लिंक को, आपको पता है कि ज्वाइन करेंगे दोबारा, तो हम अपनी डिस्कशन को यहीं से आगे जहां से खत्म होगी प्रोसीड करेंगे। सो मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो मिडसमर्स नाइट ड्रीम, इससे पहले किसी ने विद इन ड्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। सो दैट वाज द क्वालिटी ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड दैट वाज द क्वालिटी ऑफ एलिज़ाबेथन ड्रामा। ये चीजें पहले नहीं थी। इससे हम वापस आते हैं, जैसे ज्वाइन दोबारा करते हैं